and this 40% solution of formaldehyde is called formalin. %40 solution is called formalin and is used for preserving biological specimens. अब इस कार्बोनाइल कंपाउंड में अगर हम एक एल्काइल और जोड़ दें, दिस विल बी कॉल्ड एसीटैल्डिहाइड. Acetaldehyde, and this acetaldehyde having this CH3 group which shows plus I effect, and due to this plus I effect, the dipole moment of CO bond increases. So in this ethanol, dipole moment is 2.72 dB, and I should say this dipole moment will be greater than the dipole moment of formaldehyde. Yes or no? And we know that this will be showing plus I effect. So what do you think the dipole moment will be? This is greater than this and the value is 2.88 dB, which means that these groups, as they are electron releasing, so they increase the dipole moment. So पहले वाले में H shows no inductive effect, that is zero inductive effect, thus do not help in the dipole. तो ये तो हो गया जो एलिफेटिक कार्बोनाइल कंपाउंड्स हैं, पर ऐसा नहीं है कि हमारे पास एलिफेटिक ही हैं, हमारे पास एरोमेटिक भी हैं. This is what is called benzaldehyde, and this benzaldehyde, when this H is substituted by CH3, this is called acetophenone, and this acetophenone, when the methyl group will be substituted by phenyl group, so this is called benzophenol. So we are having the different category of carbonyl compounds. Regarding its physical properties, as I already said about dipole moment, the second I should say is कि फिजिकल प्रॉपर्टी भी हो गई. फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी थी डाइपोल मोमेंट,
This carbonyl compound having poor force of interaction, thus having low melting and boiling point. Yes or no? डाइपोल मोमेंट तो है, फिर भी मेन फोर्स वंडरवॉल फोर्स ही मानी जाएगी. So as we move towards the higher aldehyde members, the surface area increases. So van der Waals force increases, and hence this is the increasing order of van der Waals force, increasing order of boiling point. This is the increasing van der Waals force. This is increasing boiling point. And this boiling point is directly proportional to van der Waals force. Yes or no? Lower carbonyl compounds are water soluble up to 3-4 members. As hydrogen of water is bonded to oxygen of carbonyl by hydrogen bond. As we move towards the higher carbonyl compounds, the hydrophobic end dominate over hydrophilic end, and hence the solubility decreases. Now is method of preparation. Method of preparation. The first method is by oxidation of alcohol.
oxidation of alcohol. और ऑक्सीडेशन में अगर हम अल्कोहल की बात करते थे तो हम कहते थे प्राइमरी की ऑक्सीडेशन फास्ट है, सेकेंडरी की स्लो है और टर्शरी की और डिफिकल्ट है. So this is the decreasing order of oxidation of primary, secondary and tertiary alcohol. So the important thing here remain is that alcohols on oxidation this is ethanol, the primary alcohol, but alcohol having hydrogen bonding, which clearly means that they will have higher boiling point. Yes or no? So when you oxidize this with the dichromate in acidic medium, this clearly means that firstly this will be converted to aldehyde. By oxidation, but these aldehydes they having low boiling point. Yes or no? Means thereby कि आप क्या करें कि उस रिएक्शन मीडियम का टेम्परेचर एल्डिहाइड के बॉइलिंग पॉइंट के बराबर रखें, ताकि जैसे ही एल्डिहाइड बने इसको हम दूसरी साइड डिस्टिलेशन करके कलेक्ट करते रहें, और ये जो अल्कोहल है यह ज़्यादा से ज़्यादा एल्डिहाइड बनाएगा. अगर आपने ऐसा नहीं किया तो इस एल्डिहाइड की फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाएगी और ये ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा जो अभी हमें नहीं चाहिए, जो हमें नहीं चाहिए. ठीक हो गया? इसका मतलब हम चाहते हैं कि हमारी जो रिएक्शन है वो बस अल्कोहल से एल्डिहाइडिक लेवल तक हो और वहीं रुक जाए. अब इसके कई तरीके हैं कि कैसे रोकें. तरीका नंबर 1 जो अभी बोला कि जो अल्कोहल जिसके से आप एल्डिहाइड बना रहे होंगे, कीटोन्स बना रहे होंगे, उस अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट उस कार्बोनाइल कंपाउंड से कहीं ज़्यादा है. इसलिए आप उस रिएक्शन मीडियम का टेम्परेचर उस कार्बोनाइल कंपाउंड के बॉइलिंग पॉइंट के बराबर रखें, ताकि जैसे ही वो बनता जाए वो कलेक्ट करते रहे हम डिस्टिलेशन के थ्रू, और कभी भी वो जो कार्बोनाइल कंपाउंड बनाया वो डाइक्रोमेट के कांटेक्ट में ना आए, क्योंकि वो उसकी ऑक्सीडेशन कार्बोक्सिलिक एसिड में करवा दे. दिस इज वन तरीका. दूसरा तरीका, हम इस स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बजाय माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करें. माइल्ड ऐसे कि जो उसको एल्डिहाइड या कीटोन तक तो पहुंचा सकता है पर उसकी फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं करवा सकता. समझ आया? इसका मतलब साफ हो गया कि आप जब भी किसी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन कर रहे होंगे तो इसका बॉइलिंग पॉइंट आपका रिएक्शन का टेम्परेचर होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल अगर हम क्वेश्चंस को देखें तो ध्यान दें यहाँ
oxidation of this is primary alcohol, and primary alcohol on oxidation will be giving benzaldehyde, but we should take this thing into account कि यहाँ रिएक्शन मिक्सर का टेम्परेचर बेंजल्डिहाइड के बॉइलिंग पॉइंट के बराबर हो, क्योंकि इस अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट उससे कहीं ज़्यादा होगा। हमने सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन की, तो सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करने से हमारे पास कीटोन बन गया। बन गया कि नहीं बन गया? पर ये कीटोन फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा अगर आपने इसको बचाया नहीं। ये सेकेंडरी अल्कोहल है, इस सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन हुई, और ऑक्सीडेशन होने के बाद इसका कीटोन बना, जिसका बॉइलिंग पॉइंट उस अल्कोहल से कहीं कम है। उसने जो हाइड्रोजन लूज किए उसका वाटर बन गया। साइक्लोहेक्सेनोल की ऑक्सीडेशन हुई, उस ऑक्सीडेशन के होने से भी साइक्लोहेक्सेनोन बन गया। ये ब्यूटेन 1 ओल है। ब्यूटेन 1 ओल एक अल्कोहल है, वो प्राइमरी अल्कोहल, और उसका ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट है ब्यूटेनॉल। तो मैंने कहा कि जो अल्कोहल है उनका बॉइलिंग पॉइंट कार्बोनाइल कंपाउंड से कहीं ज़्यादा है, तो आप ध्यान रखें। उसने कहा कि इस रिएक्शन मिक्सचर का टेम्परेचर कितना रखा जाए। हमें टेम्परेचर कितना चाहिए कि जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड हो पर अल्कोहल का ना हो। तो इसलिए अगर हम ध्यान से देखें तो इस एल्डिहाइड के बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू 349 केल्विन है, और उसके अल्कोहल के बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू 391 केल्विन है, मतलब ऑलमोस्ट 40 डिग्री ज़्यादा। तो हमने इस रिएक्शन मिक्सचर का टेम्परेचर 350 रख लेना है। जो एल्डिहाइड बनता रहेगा वो डिस्टिल होके आगे जाता रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा एल्डिहाइड बनता रहेगा। पर हमने कहा कि भाई या तो ये तरीका देखें या फिर ऐसा तरीका देखें कि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अब जरा ध्यान देना है वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है और उन माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का एक्शन क्या है। उन माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में पहला मैं ले रहा हूं सेरेट्स रिएजेंट। Sarrat's reagent is one is to 2 ratio of chromium trioxide Sarrat's reagent is 1:2 ratio of CrO3.2 pyridine in pyridine solvent। in pyridine सॉल्वेंट, और pyridine एक नॉन एक्वस मीडियम का बढ़िया सॉल्वेंट है। ये हो गया Sarrat's रिएजेंट। इस Sarrat's रिएजेंट का
एक ड्रॉबैक है कि जो पीरिडीन है ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, और जो प्रोडक्ट बनेगा वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड ही बनेगा। तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो प्रोडक्ट है वो पीरिडीन के साथ मिक्सिबल हो जाता है, और इसलिए सेपरेट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए इस रिएजेंट को मॉडिफाई कर दिया, और मॉडिफाई करने वाला जो बंदा था he was Colin, and hence this is called Collins reagent. वो कॉलिन्स रिएजेंट क्या है, कहता वही है 1:2 ratio of CrO3 dot to pyridine. The difference only is in CH2 Cl2 as solvent. दो रिएजेंट हो गए। तीसरा रिएजेंट, the third reagent is Corey's reagent. Corey's reagent is also called PCC. That is pyridinium chlorochromate. Yes, no. And this is 1:2 1 ratio of CrO3 HCl and pyridine. So it's called pyridinium chlorochromate. There is one more reagent who can help in achieving this target. That reagent is PDC. PDC is pyridinium dichromate. What is pyridine is this? Pyridinium डाइक्रोमेट। मेनली यहाँ गेम किस चीज़ की है, सॉल्वेंट की। एक्वा सॉल्वेंट प्रोवाइड करोगे, डाइक्रोमेट किसी को नहीं छोड़ेगा। ये बिल्कुल ऐसे हुआ जैसे आपने उसकी एक टांग काट दी हो, उसकी पावर घट। दिस इज pyridinium dichromate. Reagent number 5, for this purpose is Jones reagent. Is Jones reagent. Jones reagent is डाइक्रोमेट, या सीधा करो
It is CrO3 acidified in acetone. एसीटोन सॉल्वेंट बनाकर उसकी टांगे फिर तोड़ दी। इस तरह से ये है उन रिएजेंट्स की लिस्ट जो हमने अभी किए। सैरट्स रिएजेंट है, कॉलिन्स रिएजेंट है, कॉरेज रिएजेंट है, और इन सब के जो PCC इज pyridinium chlorochromate and this PCC is the most commonly and most preferred reagent. अब ये जो रिएजेंट है, क्योंकि ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसलिए ये सेलेक्टिव भी है। सेलेक्टिव होने का मतलब ये हुआ कि भाई किसकी ऑक्सीडेशन करनी है और किसकी नहीं करनी, क्योंकि ये वीक है इसलिए इसने डबल बॉन्ड को कुछ नहीं किया। तो डबल बॉन्ड वैसे का वैसा रहा और सेकेंडरी अल्कोहल का कीटोन बन गया। ये PCC का एक्शन है। ये जोन्स रिएजेंट है जिसमें एसीटोन सॉल्वेंट है, जिसकी वजह से, और ये भी कोई ये बन गया एल्डिहाइड। मैंगनीज डाइऑक्साइड भी एक सिलेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो डबल बॉन्ड को तो नहीं करेगा पर अल्कोहल को जरूर कर देगा। नेक्स्ट मेथड इज bypassing the vapor of fatty acids so that we will be getting HC HO plus CO2 plus H2. This is similar to decarboxylation. इसलिए अगर दो एसिड कहीं दो कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिए, अब इसमें क्या होगा कि CH3 CHO अब बन गया CH3 CHO प्लस CO2 plus H2O. This next reaction is very important reaction and is called Walker process.
उस वाका प्रोसेस में कौन कैटलिस्ट है और कौन नहीं है, अब इसमें जो PDCl2 है एक्चुअली में ये कैटलिस्ट है, और ये जो PDCl2 है दिस इज हाईली एक्सपेंसिव। दिस इज वेरी एक्सपेंसिव। जब ये बहुत एक्सपेंसिव है तो जब ये यूज हो जाता है इसको, ये PDCl2 की रिडक्शन हो जाती है और ये PDCl2 रिडक्शन के बाद PD में कन्वर्ट हो जाता है, एल्कीन की ऑक्सीडेशन हो जाती है, और इस PDCl2 की जो रिडक्शन हुई, इस PDCl2 को बार बार रीजनरेट करने के लिए CuCl2 का काम है, CuCl2 का रोल प्ले करना पड़ेगा। नंबर 1, PDCl2 undergo its oxidation PDCl2 will be converted into PD plus जो Cl2 है उससे बन जाएंगे उसके 2 HCl। समझ में आ गई बात? तो PDCl2 इस रिएक्शन में एक्ट कर रहा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यस और नो? तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो है, पर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बहुत महंगा भी है और हर बार ये PD में कन्वर्ट हो रहा है। इसका मतलब साफ हो गया कि PDCl2 एक्सपेंसिव है, उसकी रीजनरेशन के लिए CuCl2 का रोल होता होगा। हमने यहाँ लिख दिया that the catalyst is PDCl2 and to regenerate PDCl2 catalyst CuCl2 is used। कैसे? सामने ध्यान दें। PD plus CuCl2, we all know that Cu exists in 2 oxidation states, Cu plus 1 and Cu plus 2। तो ये PD बना है, जो प्रोडक्ट बना है ये CuCl2 के साथ, PDCl2 बन गया और साथ में बन गए 2 CuCl। कॉपर भी 2 तरह का है, क्यूप्रिक है, एक क्यूप्रस है। +1 है तो क्यूप्रस है और +2 है तो क्यूप्रिक है। टू CuCl, यहाँ देखो एयर लिखी हुई है, ऑक्सीजन। वी नो दैट Cu exists in +2 as well as +1 oxidation state। तो ये Cu +1 से +2 मतलब CuCl2 के साथ
So this PDCl2 is regenerated by this reaction, and CuCl is further converted into CuCl2 by this reaction. तो CuCl2 और CuCl2 जब रीजनरेट हो गया तो 2CuCl जो यहाँ बना था विद एयर विल बी यहाँ H2O के बजाय मीडियम में और क्या पड़ा हुआ है, HCl। ये देख रहे हो यहाँ। अब क्या हुआ कि ये HCl में CuCl2 तो बना दिया और बनाना भी पड़ेगा 2। हमारे पास रह गया 2 और 2 4 मतलब 4। तो हमारे पास अब रह गया CuCl2 बन गया और रह गया हमारे पास H2O। तो हमने कहा कि द रोल प्लेड बाय CuCl2 इज नॉट कैटालिटिक। कैटालिस्ट तो भाई कौन है, PDCl2, जो क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यस और नो। चलिए आगे। The next method of preparation of carbonyl compound is Rosenmund reduction. In such reaction, it has been observed वो हाइड्रोजन उसकी रिडक्शन कर देगा और उस हाइड्रोजन की रिडक्शन से ये अब पहुंच गया यहाँ जहाँ है C डबल बॉन्ड OH। पर एक बात ध्यान से सुन लेना है, काम निकलने के बाद इस कैटालिस्ट को पॉइजन दे देना है, सो कॉल्ड कैटालिटिक पॉइजन। इसमें क्या करते हैं कि हाइड्रोजन को बॉइलिंग ज़ाइलिन में डाल देते हैं और जब ये बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है पैलेडियम कैटालिस्ट के साथ, सो दिस इज एडेड विथ BaSO4 and sulfur. These both act as a negative catalyst. नेगेटिव कैटलिस्ट का मतलब हुआ दे प्रिवेंट द डीकम्पोजिशन। यस और नो। सो कंप्लीट द रिएक्शन। पैलेडियम कैटलिस्ट है, बेरियम सल्फेट और सल्फर जो है वो नेगेटिव कैटलिस्ट है। Quinoline, sulfur, BaSO4, they are negative catalysts to prevent the further conversion of this aldehyde into alcohol. Yes or no? For this we use this
palladium and barium sulfate. Yes or no? सामने ध्यान दें कि हमने क्या देखा कि भाई एसिड क्लोराइड है और वो एसिड क्लोराइड जो है रिडक्शन कर दोगे तो सीधा अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। पर हमें तो क्या चाहिए था, एल्डी हाइड्रिक लेवल। इसलिए हमने कैटालिस्ट डाला ट्राई टर्शरी ब्यूटॉक्सी एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ट्राई टर्शरी ब्यूटॉक्सी, कितने हाइड्राइड है इसमें? सिर्फ अरे एक हाइड्राइड है। इसका मतलब हुआ कि द प्रोडक्ट विल बी एसिटाल्डिहाइड एंड नो फर्दर रिडक्शन मिलाकर, क्योंकि जो रिड्यूसिंग एजेंट है दैट इज माइल्ड, सिंगल स्टेप वो हाइड्रोजन दे सकता है। अब बात आती है स्टीफन रिडक्शन। SnCl2 प्लस HCl SnCl4 प्लस 2 नेसेंट हाइड्रोजन, यही वो नेसेंट हाइड्रोजन है। एक इधर आ जाएगी और दूसरी उधर आ जाएगी। CH डबल बॉन्ड NH बोलते भाई इसको। दिस इज कॉल्ड बेंजेल्ड इमाइन। बेंजेल्ड इमाइन। इस बेंजेल्ड इमाइन को हाइड्रोलाइज कर दो, तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, वाटर से हाइड्रोलाइसिस कर दो, ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा तो यहां क्लीव हो जाएगा और यहां क्लीव हो जाएगा तो CHO plus ammonia. This is called नेट क्यों नहीं चल रहा भाई? हाँ क्यों?
यहाँ से CN में ये H एक एक H दोनों के पास आ गया, रिडक्शन कर दी इसकी, जिससे बेंजेल्ड इमाइन बना, उसकी हाइड्रोलिसिस कर दी, 2 OH इधर आ गए जो नहीं रह सकते, इसलिए वहाँ बेंजेल्डिहाइड और अमोनिया फाइनल प्रोडक्ट बन गया। मैं ये कहता हूँ कि भाई इस इमाइन को फर्दर रिडक्शन नहीं होने देना होगा, इसलिए हमने क्या किया कि डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लिया। ये किया था हमने, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड. Aluminium hydride is with 3 hydrogens, but if वो एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज AlH3, उन 3 H की जगह सिर्फ कितना H रख दिया? 1. एल्यूमिनियम आइसो एल्यूमिनियम आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, या फिर डाइबाल. डाइबाल इज डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, दैट इज द सेम थिंग. अभी जो डाइबाल है ये भी रिड्यूसिंग एजेंट है, पर ये एक ही स्टेप रिडक्शन का कर सकता है बस, क्योंकि अगर आपने AlH3 लिया होता तो आगे प्रोडक्ट बहुत बने होते, पर आपने AlH3 नहीं लेना है, बल्कि AlH3 तो मॉडिफाई कर दिया गया, और जब वो मॉडिफाई कर दिया गया तो प्रोडक्ट बना CH3 CH डबल बॉन्ड NH. यस और नो? फिर वही हाइड्रोलिसिस एंड वी गॉट एसिटल्डिहाइड प्लस अमोनिया. And this reduction is called Stephan reduction. अब बात करते हैं कि डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड कितना सिलेक्टिव है. डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड डबल बॉन्ड को कभी नहीं छेड़ेगा भाई. किसको नहीं छेड़ेगा? डबल बॉन्ड. जब वो डबल बॉन्ड को नहीं छेड़ेगा तो डबल बॉन्ड एज इट इज रहेगा, और डबल बॉन्ड के डबल बॉन्ड की ऑक्सीडेशन या रिडक्शन के लिए डबल बॉन्ड आपने डाईआइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाला. ये हाइड्राइड जो है उसको फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा और आपके पास अमोनिया होगा. यस और नो? पर ये डाईआइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड डबल बॉन्ड का कुछ नहीं कर सकता. ठीक हो गया? अब ये जो डाईआइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, ये एस्टर की भी सेम जैसे ऊपर हुआ ऐसे ही कर देता है. CHO प्लस C2H5OH. पर इस बात का खास ध्यान रखना है
कि जो टेम्परेचर है वो 195 केल्विन है। अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो मुझे लिखना होगा T greater than 195 केल्विन। जब होगा तो ये एस्टर पूरा टूट जाएगा। तो यहां अब हमारे पास मिक्सचर ऑफ अल्कोहल बन जाएगा, पर हमें तो एल्डिहाइड बनाना है, इसलिए T शुड बी केप्ट बिलो 195 केल्विन। नेक्स्ट रिएक्शन, अगर आप टॉल्यूइन की ऑक्सीडेशन करते हैं तो सीधा बेंजोइक एसिड मिल जाता है, पर अगर आप टॉल्यूइन को क्रोमाइल क्लोराइड एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसलिए इसको इटार्ड्स रिएजेंट भी कहते हैं, क्योंकि इस रिएक्शन को इटार्ड रिएक्शन कहते हैं। ये फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, पर कैसे बनेगा, 2 स्टेप्स में करते हैं। पहला स्टेप, ये मिलकर एक ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स बनाता है। अब ऐसा बनने से क्या हुआ कि एक ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स बन गया। इस ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स को जब आपने हाइड्रोलाइज किया तो भाई इसकी फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं हो सकती, and we got benzaldehyde as the major product. So this reaction is called Itard's reaction, and this reagent is called Itard's reagent. With chromium trioxide in acetic anhydride, जैसे ही आप एसिटिक एनहाइड्राइड डालोगे this will be geminal acetate, और ये जो जेमिनल एसीटेट है ये उसकी फर्दर ऑक्सीडेशन होने से बचाता है। So this will go here, this will go here, you will be getting is benzaldehyde plus acetic anhydride बाहर निकल जाएगा। ये जो जेमिनल एसीटेट है ये उस एल्डिहाइड की फर्दर ऑक्सीडेशन को रोकता है।
जैम डाइएसिटेट। ठीक हो गया जी। Next method of preparation is Gatterman-Koch reaction. Write down the mechanism. किया हुआ है हमने पहले ये। Write down mechanism. एक लिमिटेशन आपने यहाँ लिखनी है, जहाँ पर आपने रोजनमंड रिडक्शन की, आपने कहा कि CH3COCl, इसको कंप्लीट किया आपने, क्या आया? CH3 CHO प्लस HCl, यही आया। पर ये रिएक्शन कभी भी, ये सब एल्डिहाइड कीटोन्स के लिए यूज हो सकती है, पर ये रिएक्शन कभी फॉर्मेल्डिहाइड बनाने में यूज नहीं हो सकती। कारण इस HCOCl this HCOCl is unstable and is generated in C2। इसलिए इसको C2 में बनाने के लिए हम हमेशा किसको लेते हैं? CO और HCl। यस और नो? इसलिए जो हम रिएक्शन कर रहे हैं, जिसका मैकेनिज्म लिखने वाले हो, गैटरमैन-कोच रिएक्शन, यहाँ भी HCOCl CO प्लस HCl से बना है। Complete the reaction. Write down mechanism. First step is generation of electrophile. So we generated the electrophile as HCOCl plus AlCl3, giving rise to AlCl4 negative plus HCO positive। यस और नो? अब हम पूरे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने वाले नहीं हैं, हमें सिर्फ इसको अटैक करवाना है रिंग के ऊपर। इसलिए ऐसा हुआ कि ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, रिंग के अंदर रेजोनेंस हो गया और रिंग ने बाहर फेंक दिया H पॉजिटिव, और यहाँ आ गया CHO, बन गया बेंजल्डिहाइड प्लस H positive, and that H positive will help us in regenerating the halogen carriers. That is, you will be getting AlCl4 negative, HCl and AlCl3. So this reaction is called Gatterman-Koch reaction.
Yes or no? Next, this we have done. Do the mechanism. This is Gattermann formylation. HCN और HCl को पहले इकट्ठा करो. HCN और HCl में HCN एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसलिए HCN को बेस एक्ट करना पड़ेगा. HCl will give H positive and HCN will accept H positive. Yes or no? Then with anhydrous AlCl3 you will generate the electrophile. That ring will be attacked by the electrophile, followed by hydrolysis. Followed by hydrolysis. तो ध्यान दें, H C triple bond N plus HCl giving rise to this will go here, thus this will go here, and this will go here. Yes or no? We will be getting NH double bond CHCl. Yes or no? This NH double bond CHCl in presence of AlCl3, who will be forming AlCl4 negative. NH बन गया इलेक्ट्रोफाइल. प्लस CH positive and NH. ये अटैक कर गया. और अटैक करने के बाद ये इसको बन गया बेंज़ाइल इमाइन, which will further undergo hydrolysis. हाइड्रोलिसिस से जैसा अभी हमने किया, ये CH डबल बॉन्ड NH बॉन्ड टूट जाएगा और CH की हाइड्रोलिसिस होगी बेंज़ाइल्डिहाइड. पूरा रिंग के अंदर रेजोनेंस हुआ और बन गया साथ में अमोनिया. Yes or no? This is called Gattermann-Koch formylation.